कि सबके लिए सिक्योरिटी चाहिए हॉस्पिटल्स में, क्योंकि नॉट ओनली फीमेल्स आर ब्रूटली एक्टेड बाय द मॉब, मेल्स को भी पीटा जाता है जब कोई किसी की डेथ हो जाती है इमरजेंसी में, कोई सीरियस हो जाता है, और जबकि काम हो रहा होता है तो उसके बावजूद भी ये मतलब भीड़ जो है इतनी तेज़ी से आती है और काम भी नहीं करने देती है डॉक्टर्स को। तो एक तो ये चीज़ होनी चाहिए कि जब भी कोई इमरजेंसी आए तो मीडिया शुड स्टे बैक, लेट द डॉक्टर्स वर्क फर्स्ट, फिर उसके बाद आप बात करें कि पेशेंट की क्या पोजीशन है, क्या हुआ, क्यों नहीं हुआ। नंबर 2 ये है कि हमें अपने समाज में अपने लड़कियों को सशक्त बनाना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है, इनफ टू डील विद ऑल टाइप ऑफ इंसिडेंसेस, और अपने लड़कों की मानसिकता चेंज करनी है, उनको इस तरीके से पालना है कि वो ऐसे एक्ट करने के काबिल ही ना हो। उनको हर लड़की में अपनी माँ दिखे, हर लड़की में अपनी बहन दिखे, हर लड़की में अपनी उनको अपनी फैमिली दिखे। ये नहीं हो कि भाई लड़की देखी और अकेली है या कुछ है या हॉस्पिटल में ड्यूटी पर है, तो ये तो प्लान्ड इंसिडेंस था। लेकिन अदरवाइज ऑल्सो जो निर्भया एक्ट हुआ था कुछ साल पहले, 16-17 साल पहले, उसमें तो वो शी वॉज वेटिंग फॉर द बस टू गो बैक होम। वो तो घर जाने के लिए इंतज़ार कर रही थी और उसको पता नहीं था कि ऐसा मेरे साथ होने वाला है। तो इसलिए ये कि सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारा समाज को चेंज होना, और जस्टिस डिलेड इज ऑलवेज डिनाइड। अब इतने दिन से कुछ नहीं हो रहा है तो इसका मतलब दे आर डिनाइंग जस्टिस। और जो हमारे जो ये कानून हैं सारे, ये थोड़े स्ट्रिक्ट होने चाहिए ताकि किसी एक को अच्छे से सजा मिली हो तो बाकियों को भी लगे, डर लगे कि हमें कुछ नहीं करना। क्या देखते हैं कि वेस्ट बंगाल की जो it was I personally feel that it was some planned murder and rape. The only unfortunate thing is that how the thing was handled, the कितने लोगों से मतलब so many the people are protesting all over India. All over India people are protesting, and there has been no reaction as the part of the government of Bengal is concerned. This is very unfortunate. And how the thing was handled, the police, which are law enforcement agencies over there, they try to hush up the case, they try to hide the evidences over there, and they try to shelter some culprits. I think I don't know who are those, but those culprits, as well as their harbors, and as well as who committed this crime, they should be punished, and they should be punished very severely, so that it should come like a terror in the minds of such people. So nobody should commit such incidents, should commit such a crime in the future. That should be the motive of this agitation. That is the motive of this protest. The other thing is that you have seen that there were so many hooligans that came. The doctors, the staff, the nurses, when they were protesting, the hooligans came. And security forces has no information that where from the people are coming and what they are doing. They were not. Only has to take benefit out of this ultrasound, ECG machine, emergency machine. They broke all CCTV cameras. They broke all the furniture in the hospital, and the security forces were moved there. And either they fled away from the scene, or they were moved to, and they were as if the whole show was organized by them. It is very unfortunate, and I was trying to hide these things. तो कोई तकलीफ लेके आते हैं, and the hospital is not a place where there is a 100% guarantee that everybody will come and is treated. Some patients come serious, some are not serious, some are very serious, very sick, and some are on the end stage of the disease. When they die, people show that this is the thing. So the problem is that there were so many other lady doctors working, the lady staff is working, female staff is working, and but there is no security in these hospitals. There is no security everywhere in all these medical institutes. The government has passed a CPA, Public Protection Act for the medical fraternity. It has been passed in the Lok Sabha in the 2020, but it has not been implemented so far. We were
इसकी पूरी सच्चाई है कि जिस तरीके से डॉक्टर कम्युनिटी, डॉक्टर कम्युनिटी इस प्रोफेशन में सर्विस देती है, इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, ये 24 घंटे दे आर ऑलवेज ऑन टोज, दे प्रोवाइड द सर्विसेज। शायद ही कोई ऐसा प्रोफेशन है जो 24/7 रहता है। इसके बावजूद दिस प्रोफेशन इज़ ए सॉफ्ट टारगेटेड प्रोफेशन। सॉफ्ट टारगेट्स बनता है ये प्रोफेशन क्योंकि देयर आर मेनी रीजंस फॉर दिस। इसका डॉक्टर्स आर सॉफ्ट टारगेट्स। नंबर वन रीज़न इज़ दे डोंट हैव मच ऑफ द सिक्योरिटी। नंबर टू, आई वुड से all the patients, as Dr. Hardeep said, cannot be treated. ये सारे पेशेंट्स को आप ट्रीटमेंट नहीं दे सकते। दे कैनॉट बी क्योर्ड। सब पेशेंट्स ठीक नहीं हो सकते। कभी कभी बड़ी चीज़ें जो घटनाएं होती हैं, हमें वी आर नॉट ए पॉलिटिकल पीपल, हमें इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो हम यही चाहते हैं कि 3 चीज़ें जो समाज में हो रही हैं, हमारा जो माइंडसेट है इसको हमें चेंज करना है। बंगाल नॉलेज नहीं है जी, गवर्नमेंट के जितने भी हीनियस क्राइम ऐसे हों जी। वो गवर्नमेंट करती भी है। मेरे ख्याल में सीबीआई इंक्वायरी हो भी रही है, अब वो कर भी रहे हैं। शायद इसके लिए जो भी क्रिमिनल्स हैं विल बी टेकन टू द टास्क। ऐसे एक्ट्स नहीं होने चाहिए समाज में। डॉक्टर्स के साथ जो इतनी कंट्रीब्यूशन है समाज के लिए डॉक्टर्स की, उनके साथ कम से कम ऐसा नहीं होना चाहिए। और ऐसे इतनी जो क्रूअल एक्ट हुआ है ये तो बहुत ही निंदनीय है, पर ऐसे एक्ट फ्यूचर में ना हो। और ये पहली दफ़ा नहीं है जो हमारी कंट्री में ऐसा हो रहा है। रिपीटेडली ये इंसिडेंसेस होते हैं। हर बार मीडिया इकट्ठा होता है, हर बार डॉक्टर्स भी इकट्ठे हो जाते हैं, हर बार पब्लिक भी इकट्ठी हो जाती है। बट ये इंसिडेंसेस पहली बात तो होने नहीं चाहिए थे। अब हो रहे हैं तो हम इकट्ठे हो रहे हैं और हमको भी वॉइस रेज करनी है, एंड दैट इज़ नॉट अ रॉन्ग थिंग टू डू। बट हमको सब मीडिया से भी यही कहना है और सोसाइटी से भी यही कहना है कि ये इंसिडेंसेस रिपीट नहीं होने चाहिए। और डॉक्टर्स अपनी 100% देते हैं। कोई भी आदमी, आप आज मीडिया कर्मी, आप घर से निकले हो, किसी को मारने तो निकले नहीं हो। हम भी अपने घर से जाते हैं, काम करने जाते हैं, हम किसी को मारने का प्लान तो करते नहीं है। हर छोटे छोटे इंसिडेंसेस को बड़ा बड़ा करके बताया जाता है, भले वो पब्लिक बताए। और मैं मीडिया से आज ये बोल रहा हूँ कि आप पहले डॉक्टर की भी एक पक्ष उनका भी सुनिया करेंगे कभी भी रिपोर्टिंग करने से पहले। सो इट विल फॉर्म अ गुड फेयर सोसाइटी। और क्या हो रहा है सोसाइटी में क्या हो रहा है आज की डेट में कि डॉक्टर्स की इमेज ख़राब कर रहे हैं कि डॉक्टर पैसा कमा रहा है, डॉक्टर ये कर रहा है, डॉक्टर ये कर रहा है। और हर बंदा जो यहाँ पे खड़ा है, भले वो मीडिया वाला है या भले वो टॉप नॉच आदमी है, ब्यूरोक्रेट है, वो अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहता है। ऐसा क्यों है सोसाइटी में? और फिर भी हम सोसाइटी में क्या कर रहे हैं आज की डेट में, डॉक्टर्स की इमेज थोड़ी सी ख़राब कर रहे हैं। इस जो लेडी के साथ हुआ उसको भी ब्लेम कर रहे हैं। डॉक्टर एके ने बताया कि भाई एक विक्टिम को भी ब्लेम किया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें कैसे हो रही हैं? मतलब क्योंकि हम अपनी सोसाइटी में सही से प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये प्रोजेक्शंस बहुत ज़रूरी हैं और इसमें मीडिया का बहुत बड़ा रोल है, इसमें सोसाइटी का बहुत बड़ा रोल है। और सबसे पहले एक आम आदमी, जो हमारी सोसाइटी है, जो आम लोगों से बनती है, उसका बहुत बड़ा रोल है। वो कैसे बनेगा? जब अगर आप लोग हमको अच्छे से प्रोजेक्ट करोगे। जब हम ही को ख़राब प्रोजेक्ट करोगे तो क्या होता है, सोसाइटी का हमारे अगेंस्ट भी वो जो मॉब क्यों आया, मॉब को बिकाया गया था कहीं से, तो इसलिए वो मॉब आया कि डॉक्टर्स के अगेंस्ट बिकाया गया या नर्सिस के अगेंस्ट बिकाया गया। ठीक है, हेल्थ सर्विसेज हमेशा इंपॉर्टेंट है और डॉक्टर्स ने दी भी हैं और आगे भी देते हैं। सर क्या देखते हैं? मैं तो बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूँ, इससे पहले भी हमने बहुत इंटरव्यूज़ में बताया है, उनका कुछ नहीं है। उनको तो अपना बस अभी का देखना है। उनके लिए कोई इट डजेंट मैटर कि किसी की बेटी मर गई है, किसी की बहन मर गई है, कुछ मर गया, उनको क्या है? उनको तो अपनी बस टीआरपी बढ़ानी है, उनको अपने लिए बोलना है और वो अपने लिए बोलते हैं। उनको कोई मतलब नहीं है। वो शाम को इकट्ठे बैठ के अपना जो भी करते हैं। को जो brutally murdered and raped हुआ, it was a very well planned and it is not a one man like show कि एक बंदे ने किया है, but it is very well planned and it is a brutally murdered. It was brutally murdered. I think जो लोग सोसाइटी में हैं, it should be condemned and not the medical profession should be condemned but all, it will condemn but the whole country. Because it is about the nation also. It is about the nation, so that these things not happen in future. And we should unite it. We should be united. The whole country should be united. कल किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है. Not only about the medical profession. Now the days are like हर जगह हर लड़की, मतलब almost 50 या 90% population और the girls है हर जगह. NMC में है, doctors भी हैं, employees भी हैं. So they are working whole day and night. And it is about the profession. All professions should be united so that these things should not be happen in future. I think this Impact on the country also. Yeah. It is a very bad on the profession also, for the country also, and for the all these things that happen. It is very unfortunate. so what will